Manohar Kesri with us on the broadcast. Manohar, a very crucial decision has been taken by the cabinet. MSPs are of course at record levels, but they are soaring to an even greater height. देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं और मोदी 3.0 के बनते ही अब देखिए किसानों के लिए लगातार पीएम काम कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ने टेक ओवर किया था तो पहले हाफ एन आवर में उन्होंने किसान निधि सम्मान की जो 17th EMI थी वो डिलीवर की। बनारस जाने पर सबके खाते में 20,000 करोड़ रुपए चले गए किसानों के लिए। और अब जब कल कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए काफी फायदे का फैसला लिया गया, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है जिसको MSP कहते हैं उसे लेकर के फैसला लिया गया। और कई ऐसे अनाज हैं, चाहे हम ज्वार की बात करें, बाजरा की बात करें या हम पल्सेस की बात करें जिसमें अरहर हो, मूंग हो या फिर धान की बात करें, इन सब के प्राइस में बहुत ज्यादा इजाफा किया गया है। मतलब अगर ओवरऑल देखें तो 117 रुपीज पर क्विंटल से लेकर के 550 रुपीज पर क्विंटल तक का इजाफा किया गया है। अब अरहर का देख लें तो अरहर का 550 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मूंग का देखें तो 124 रुपीज की बढ़ोतरी हुई है। धान में देखेंगे तो 117 की बढ़ोतरी हुई है। तो उन करोड़ों किसानों को फायदा इससे पहुंचेगा जो MSP की मांग लगातार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने वादा भी किया था किसानों की आय दोगुनी करेंगे और किसानों जो हमारे देश के किसान है, भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसे आगे बढ़ाने में, विकसित भारत बढ़ाने में किसानों की अहम भूमिका है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो है उनके फेवर में इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। जी। All right, and we also have with us Mithali Nikore, senior economist, joining us on the broadcast this morning. Thank you for speaking to us on NewsX. What do you make of these record MSPs that have now been issued? 14 Kharif crops have now seen a considerable increase in the MSP. How far do you think this will go in order to encourage the farmers to produce these crops? We've also seen a high amount of increase for several cash crops as well this time. Absolutely, absolutely. Thanks a lot for having me, first of all, today to discuss this very important announcement. One thing which we should think about in terms of this announcement of increase in MSP is how strategically different crops have been prioritized through the MSP announcement. So, for example, when we look at the overall increase in millets, right, we know that the Prime Minister has been prioritizing the International Year of the Millets in 2023, and he has been exhorting farmers to grow more millets. And of course, the overall market demand for millets is also increasing. And, you can see in cities across the country, you have millet cafes, that are coming up, and there's a huge demand even amongst the consumers. And there we see that, there's an increase in ragi for 444%, bajra of 125%, maize of 135%. So it's keeping with the overall messaging around millets. The second area which I would like to point out is around oil seeds. So in the budget, in the interim budget that was, announced in March and in February, March, that time it was clearly said by the finance minister that import substitution of oil seeds is a massive priority for India, because currently we are hugely dependent on imports of oil seeds from Indonesia. And the increases in all of the oil seeds in terms of the MSP reflect this policy priority, because of course when you increase the market, the MSP for sunflower seeds by say 520%, or sesame by 632%, or Niger seed by 983%, then what you're essentially signaling to the market is that we are willing to pay a higher price, much higher price, for our domestically produced oil seeds. And this is in line with the import substitution policy. All right, ma'am. With that, I would like to thank you for joining us on the broadcast, of course, sharing your insights as far as the boost towards millets is also concerned. Meanwhile, viewers, my colleague has in fact spoken to some farmers from Aligarh to gauge their reaction with regards to the government's decision. Let's have a look at this conversation.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बहुत टाइम से जो मांग थी एमएसपी को लेकर उसमें बढ़ोतरी की और बढ़ोतरी भी अच्छी खासी की है। इसको लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमाम जो किसान मौजूद हैं इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो एमएसपी पे जो बढ़ोतरी की है उस पर इनका क्या कहना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? कमीशन। अच्छा, जो एमएसपी बढ़ी है, जो सरकार ने बढ़ाई है अभी, जो दलहन है, धान है, दालें हैं, इनको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? के लिए बहुत अच्छा विकास किया है मोदी जी सरकार ने, बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है और ऐसा ही होना चाहिए। प्रतिवर्ष एमएसपी बढ़नी भी चाहिए। तो जो एमएसपी पे जो बढ़ोतरी हुई है उससे आप खुश हैं? हाँ, खुश। अच्छा, क्या नाम है आपका भैया? दिनेश कुमार। अच्छा दिनेश, ये बताओ क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ, मैं खेती भी करता हूँ। खेती भी करते हो। तो जो एमएसपी बढ़ी है उसकी जानकारी है आपको? नहीं। अच्छा, एमएसपी में जो बढ़ोतरी है उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? संतुष्ट हैं आप? मतलब रेट का तो आपको जानकारी नहीं है, लेकिन किसानों के जो रेट बढ़ाए गए हैं उसकी कुछ आइडिया है आपको? नहीं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? राजकुमार चौहान, खेती करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो एमएसपी बढ़ी है, जो सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है, तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, पिछले 2 कार्यकाल के अलावा ये जो अभी जो बढ़ा है, तो इसमें क्या कुछ कहना है आपका? क्या लगता है आपको अच्छा किया है? क्या कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हित में जो फैसला लिया है, एमएसपी बढ़ाई है जो, इसमें उन किसानों को बहुत लाभ होने वाला है और निश्चित है किसान बहुत संतुष्ट है इस चीज़ से। और किसान के लिए जो इसमें जो बढ़ाए हैं मक्का या धान पे या बाजरा पे जो बढ़ाए हैं, इससे बहुत सारी सहूलियतें होने वाली है। किसान इससे बहुत खुश है और वो मोदी जी को इसी तरह अपने पक्ष में फैसला आता रहे किसान के पक्ष में, वो यही चाहता है। ज़्यादातर खेती क्या करते हैं आप? टमाटर वगैरह है, खीरा है। अच्छा, तो क्या मूली भी है। मूली भी है। जैसे अभी आपने धान की बात की, तो धान पे 117 रुपये की जो बढ़ोतरी की है, काफ़ी है? काफ़ी, और भी बढ़ेंगे आने वाले समय में इस हिसाब से। पिछले 2 कार्यकाल की बात करें तो उस समय एमएसपी क्या रही? सही रही? ठीक ठाक तो रही थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं हुई थी। अब जो बढ़ी है। आप संतुष्ट हैं? देखिए और भी लोग हैं, पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन उपाध्याय है। अच्छा ब्रजमोहन जी, मुझे ये बताइए कि जो एमएसपी सरकार ने बढ़ाई है, तो सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आप कौन सी खेती ज़्यादा करते हैं यहाँ पे? हम धान, मक्का, बाजरा ये सब खेतियाँ करते हैं। और ये यहाँ इस क्षेत्र की प्रमुख खेतियाँ हैं जिसमें धान विशेष प्रमुख है। तिलहन में और दलहन भी करते हैं, जिसमें दाल अरहर भी करते हैं। तो इसको देखते हुए जो एमएसपी बढ़ाई है, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं है लेकिन संतुष्टिपूर्ण है कि ठीक है, इतना बढ़ गया, किसान को कुछ लाभ होगा। किसान को तो और बढ़ जाती, थोड़ा और लाभ रहता किसान का भी, क्योंकि किसान की जो दुर्दशा है वो बहुत दयनीय है। किसान कभी भी जो है खाद बीज महंगा होने के कारण परिपूर्ण नहीं हो पाता, उसी समस्या ही रहती हैं। हाँ ठीक है, कुछ हुआ है हद तक। मोदी सरकार ने अच्छा किया है, बिजली की भी अच्छी समस्या दूर हो गई है, समय से बिजली आ रही है। हाँ एक समस्या जरूर चल रही है कि खाद की किल्लतें चलती हैं, समय पर खाद नहीं मिल पाता है और महंगा रहता है खाद, जिस वजह से जो आय है हमारी, जो उन्होंने नारा दिया दोगुनी करने का, वो दोगुनी नहीं हो पा रही है। अभी स्थिति हमारी नाजुक चल रही है। पिछली सरकारें रहीं, उन्होंने भी तमाम, जैसे कि कहते हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ किया। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, पिछली सरकारों का, पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं मोदी सरकार को तीसरा कार्यकाल भी शुरू हो गया है, किसानों को कितना लाभ मिला है? जी, पिछली सरकारों ने तो बिल्कुल किसानों के बारे में सोचा ही नहीं था। किसान उनके लिए तो एक बधुआ मजदूर था। किसान की तो दुर्दशा ये थी कि उसे रोटी भी नहीं नसीब नहीं होती थी। रात के 12-12 बजे जाके पानी लगाना पड़ता था खेत में और रातों में काम करना पड़ता था, फिर भी किसान की दुर्दशा बहुत बहुत ख़राब थी। आज की जो स्थिति है इतना है कि रात में पानी नहीं लगाना पड़ता और मोदी जी ने ये विशेष लाभ किया है, योगी जी ने भी लाभ किया है कि लाइट जो हमें परिपूर्ण मिल रही है और दिन में मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिन में लाइट मिलती है, किसान दिन में पानी लगाता है और रात में नहीं जाता है। आपने कहा कि सारी समस्याएं, एमएसपी पे कुछ बढ़ोतरी हुई, थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन जो खाद की समस्या है वो अभी थोड़ा सा परेशान करने वाली है। जी, खाद में हमें हमेशा परेशानी आ रही है। लाइन खाद मिलता नहीं है समय से, और विशेषकर डीएपी तो मिलता ही नहीं है। जब फसल की बुवाई का समय होता है, रोपाई का समय होता है, तब नहीं मिलती है। उसके बाद मिलती है तो वो हमारे लिए कारगर नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? राजन सिंह। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं सर। कौन सी खेती करते हैं? और सब्जी वगैरह करते हैं। अच्छा, तो जो एमएसपी बढ़ी है उससे क्या लग रहा है आपको, लाभ मिलेगा इससे? हाँ थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा। हाँ थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा, इससे पहले से तो फायदा ही होगा। कोई ऐसी समस्या जो आपकी रही हो, जो आपको फेस करना पड़ रहा हो, जिसको सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया? नहीं, अब तो सब ठीक हो रहा है, पहले से तो अच्छा ही है। पहले से अच्छा होता है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिराज किशोर लोधी। हाँ,
तो क्या करते हैं, कौन सी खेती करते हैं आप? खेती बाजरा है, मक्का है। एमएसपी जो बढ़ाई है सरकार ने, उसका जानकारी है आपको? हाँ बिल्कुल, आज के पेपर में ही देखा था और बहुत अच्छा प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किसानों के हित में जो फैसला लिया है। अब और सन 2014 से जो भाजपा गवर्नमेंट आई है वो प्रमुखता से किसानों के हित में काम करती चली आ रही है और इस समय लगातार किसानों के हित में एमएसपी रेट तीसरे कार्यकाल में भी जो बढ़ा है वो सराहनीय है और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो किसानों के हित में सोचते भी हैं और आगामी सोचते भी रहेंगे। बिल्कुल, ये तमाम किसान थे हमारे साथ और उन्होंने बाकायदा अपनी राय रखी कि जो मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है इसमें एमएसपी बढ़ी है। हालांकि किसानों को जो सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, दोगुनी ना सही लेकिन कहीं ना कहीं राहत देने वाली ये एमएसपी रहेगी। लेकिन किसानों की समस्या एक और है कि उनको खाद की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बात करें डीएपी और यूरिया की, तो यूरिया तो कहीं हद तक अवेलेबल है लेकिन जो डीएपी है उनके लिए मारामारी रहती है। तो उनकी सरकार से अपील है कि सरकार थोड़ा इस पर भी ध्यान दो। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेकर के हैट्रिक मार दी। हालांकि शुरू से ही इन्होंने किसानों को लेकर के काम किया है। इस बार की अगर बात करें तो जैसे ही जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने जैसे ही तीसरी बार शपथ ली, शपथ लेते ही उन्होंने सबसे पहले किसान सम्मान निधि को रिलीज़ किया और उसके बाद कल जो बैठक हुई है कैबिनेट बैठक में, कहीं ना कहीं जो फसलें हैं, फसलों के एमएसपी में वृद्धि की गई है। ऐसे में किसानों का क्या कुछ मानना है, ये जानने के लिए इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के पतौना गांव में है। यहाँ पर तमाम किसान हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है। जिस तरह से लगातार मोदी सरकार किसानों के लिए सोच रही है, ऐसे में उनको क्या लगता है। क्या नाम है आपका? राजेश रावत। राजेश जी, बताइए कि लगातार मोदी सरकार ने तीसरी बार बनी है मोदी सरकार, ऐसे में किसानों के लिए तुरंत शपथ लेते ही मोदी जी ने खुद किसान सम्मान निधि रिलीज़ किया। उसके बाद कल कैबिनेट बैठक में जो एमएसपी है, एमएसपी में वृद्धि की गई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने काम तो अच्छा किया है, जो तत्काल शपथ लेने के बाद में किसानों के खाते में पैसा रिलीज़ किया है। लेकिन इसमें किसानों की आशा थी कि इसका जो किसानों सम्मान निधि है, इसको रेट बढ़ाने के बाद चुनाव था, चुनाव पहले सोच रहे थे किसान हमको बढ़ के रेट मिलेगा, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो भी सरकार दे रही थी उसको तत्काल रिलीज़ करने का काम किया है। और रही बात एमएसपी की, एमएसपी पे जो 14 फसलों पे एमएसपी देने का काम मोदी जी ने किया है, ये बढ़ाया है, ये सराहनीय कदम है और इससे सीख लेने की सरकार को ज़रूरत है। मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसे कि आज गेहूं का रेट 24 रुपये है, अभी ख़रीद चल रही थी केंद्र पे, लेकिन केंद्र पे ख़रीद रेट कम होने के नाते किसान जो है अपना फसल, गेहूं की फसल को व्यापारियों को हाथ बेचा है, इसलिए क्योंकि उस रेट बाहर उसको ज़्यादा मिला है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि किसानों की आय को लेकर और खर्च को लेकर को सरकार को गंभीर सोचना चाहिए और रेट इसका अच्छा देना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ। आपको लगता है कि एमएसपी में और ज़्यादा वृद्धि करनी चाहिए? बिल्कुल, हमारी मांग है कि जैसे कि किसान दिन रात जा करके अपना कीटनाशक दवाई लेकर के बीज और खाद और डीजल इतना महंगा है। खैर, मैं बात ये करता हूं कि अभी सरकार ने जो कदम कुछ चुनाव पहले एक कदम उठाया है, जो किसानों को ट्यूबवेल बिजली फ्री देने का काम किया है, ये भी सराहनीय कदम है। लेकिन उसमें कुछ मानक जो लगा दिए गए वो गलत है, उन मानक को हटाना चाहिए सरकार को, जिससे सरकार को भी फ़ायदा होगा और किसान को भी फ़ायदा होगा। और मैं किसान की खर्च को देख करके किसानों की एमएसपी का रेट बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ किसान हैं, आप बताइए क्या लगता है, आप बताइए, आप किसान हैं, क्या खेती करते हैं आप? जी सर। कितनी खेती है आपके पास? 10 बीघा है। अच्छा बताइए, जो सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, ऐसे में एमएसपी भी बढ़ाई गई है, आपको क्या लगता है कितना अच्छा है वो? अच्छा हुआ, जो भी कर रही है सरकार अच्छा कर रही है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, जी, आपके घर पे खेती होती है? खेती होती है, बिल्कुल सर। क्या कुछ कहेंगे इस सराहनीय कदम को लेकर के? सराहनीय कदम को ने जो कार्य किया है अच्छा किया है, लेकिन ये है कि जैसे कि किसान भाई इतना ब्याज, जैसे बीज लेने जाते हैं उसको भी महंगा मिलता है, खाद भी महंगी मिलती है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। और बाकी डीजल वगैरह जो है ये भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसान भाई इतना इस महंगाई के रेट में नहीं खरीद पाते हैं। और फसल के चक्कर में देखो दवाइयाँ वगैरह हैं वो भी लेने जाने में बड़ी महंगी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए सर, क्या कहेंगे जिस तरह से कैबिनेट बैठक में, पहली जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें किसानों की जो फसलें हैं, खरीफ की फसल में जो 14 फसलों को लेकर के एमएसपी बढ़ाई गई है, किसानों को कितना फ़ायदा होगा उससे? इसमें फ़ायदा थोड़ा बहुत होगा, लेकिन बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, इसलिए कि व्यापारी के हाथ बेच रहे हैं किसानों, जो भी गल्ला है व्यापारी के हाथ बेच रहे हैं, जो
मिलना चाहिए लाभ, वो मिल नहीं पा रहा है, उसमें बढ़ाना चाहिए। जो व्यापारी से कम कुछ ज़्यादा देना चाहिए। फिलहाल इस कदम के बारे में क्या कहेंगे? ये तो ठीक है, इनका ये सराहनीय काम है, लेकिन सम्मान निधि बढ़ाने का था, सम्मान निधि बढ़ा दें तो थोड़ा बिजली जैसे है, बिजली उन्होंने फ्री दिया, थोड़ा बढ़ा के दें। बिल्कुल। आप बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहबदीन, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। खेती करते हैं। सरकार द्वारा जो किसानों को लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हर ठीक है, किसान पीएम वाला पैसा भी भेज चुके हैं, दिया है, लेकिन कुछ बढ़ा के देना। किसानों की स्थिति में कुछ सुधार है पहले से अब में? हाँ, कुछ सुधार है, और पीएम पैसा जो है कुछ बढ़ा के देना चाहते थे, वो नहीं, सरकार ने नहीं दी, लेकिन जो दिया वो ठीक दिया है। अब आगे जैसे बीज वगैरह हम लोगों को ज़्यादा महंगे मिलते हैं, खाद भी महंगी मिलती है, तो इसमें थोड़ा जो है रेट कम करना चाहिए। बिल्कुल, और भी चीज़ों में सोचना चाहिए। और कुछ लोग हैं, आप बताइए, आपसे बात करेंगे। आप बताइए दादा, खेती करते हैं? खेती करते कि नहीं? हम खेती नहीं करते सर। नहीं करते खेती। चलिए खैर कोई नहीं। यहाँ पर देखा, ये सारे पतौना गांव के सारे किसान थे जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से कैबिनेट में ये अहम फैसला लिया गया कि जो किसानों की फसलें हैं, 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। हालांकि किसानों को कहना है कि और भी सरकार को किसान हित में काम करना चाहिए ताकि किसानों की स्थिति में और सुधार हो सके। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.